Shalom, 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 hallelujah. Jai Yeshu Masih ki. Greetings to all of you in Jesus' wonderful name, hallelujah. Let's all join together to glorify the name of the Lord of glory, the majestic King of heaven and the earth, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Lord Jesus, we bless your holy name, Lord. We glorify you. We magnify you, Jesus. Hallelujah. We lift up your holy name. तेरे नाम को ऊंचा करते हैं. तेरे नाम के आगे झुकते हैं यीशु मसीह. तेरे नाम की हम्द करते हैं, मदह सराई करते हैं. तेरे नाम का स्तुति गान करने के लिए हम एकत्रित होते हैं. हालेलुया. हालेलुया. आइए सब प्रार्थना करें. लॉर्ड वी ब्लेस यू, लॉर्ड वी प्रेज यू, लॉर्ड वी ग्लोरीफाई यू. Lord, we glorify your name. We glorify your name. Glorify your name. Lord Jesus, we glorify your name. Hallelujah. धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो. धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो. यीशु मसीह आपके लहू के लिए, पवित्र लहू के लिए धन्यवाद. पवित्र लहू के लिए, पवित्र लहू के लिए धन्यवाद. जीसस, वी ब्लेस योर नेम. जीसस, वी मैग्निफाई योर होली नेम. हालेलुया. आइए प्रार्थना करें. भाई साबी सुरजीत की प्रार्थना विनती है. इनके रिलेटिव्स के लिए सब मिल के प्रार्थना करें. साबी सुरजीत के लिए. लॉर्ड, वी प्रे दैट यू वुड टच दिस मैन एंड हील हिज बॉडी. लॉर्ड, that you would bless his family members, Lord, that you will stretch forth your hand upon him and upon his loved ones. Hallelujah. Lord, I cover him under your blood. Lord, I also pray for Tanuja Seth. I pray that you bless Tanuja Seth and her family. I pray for Prabdeep and his household. Bless him, Father. Father, I lift up Devinder Kular before you from England. I pray for her husband Paramjeet, and I pray for her children, Father. I pray that you would stretch forth your mighty hand over her and her household, Lord Jesus. Lord, I also pray for Brother Sahil from Pakistan, for his household, for your blessing. I pray for Brother Yunus Masih over his family, over his life, Father. I pray for Urmila Devi. You bless her. She lives in the hills of Himachal Pradesh, Lord. I speak blessing over our household. And I pray, Father, for Jasveer Singh Surinder. तेरी बरकत को जसवीर सिंह सुरिंदर के घराने पे खोलता हूँ. Father, I pray for Bobby Art. I pray for Pastor Charanjeet. I pray for his whole family, Lord Jesus. Hallelujah. I pray for Sunita Guria Kansavar for the blessing of the Lord. खुदावंद, मैं हरपाल बाजवा के लिए भी प्रार्थना करता हूँ. Lord, I bless him. I bless his wife, his household. Cover them under the blood of the Lamb. I pray for Harjeet Singh. Cover Harjeet Singh under your blood. Lord, I pray for Guruvinder Singh. Bless this dear brother, Lord. Stretch forth your mighty hand over him. Lord, bless your daughter Pooja Bisht. May your hand be upon her household in the name of Jesus. Hallelujah. Jesus, I pray that you would stretch forth your mighty hand over Nagam Gill from Hajipur. Bless this young guy, Lord. Stretch forth your hand over Nagam Gill. Bless Deji VS. I cover her under your blood. I pray for Karamjeet Kaur.
Bless her, Father. Bless her, G Singh. Lord, stretch forth your hand. Bless brother Amrish Kumar. Bless him. Bless his ministry. Bless his household, Lord. I cover him under your blood. And brother Emmanuel Sahota and his family, his household, I cover them all under your blood, Lord. Jesus, bless brother Lalit Mehra and his family, his household in Delhi, Lord Jesus. तेरा धन्यवाद हो प्रभु. ब्रदर रमन खान को तेरे लहू में छिपाता हूँ, उनके घराने को, खास करके मैं उनके भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ. लॉर्ड जीसस, लॉर्ड ड्रॉ हिम आउट ऑफ दैट कल्ट वेयर ही इज हेल्ड कैप्टिव with darkness in his soul. Lord, draw him to you, Jesus of Nazareth. And I release his finances, his business, Lord. I release them, whatever the enemy has held in hostage. May it all be released, Father. Bless Darshan Singh from Jalandhar. Bless his household. Bless his family, Lord. Cover them under your blood. Hallelujah. धन्यवाद यीशु मसीह. Hallelujah. कितनी अजीब ये दास्तां, कितना अनोखा ये वास्ता, तेरी सलीब से खुल गया मेरी शिफा का रास्ता, मेरी शिफाओं का रास्ता, मेरे दर्द व गम को लिए हुए लटका था ये सुसलीब पर. Lord, we thank you for the cross. Lord, we thank you for your atoning death on the cross of Calvary. You took my place, you took our place, Lord Jesus. Your impeccably glorious righteousness was imputed unto us, and our heinous, dirty sins were put upon you. Our darkness was exchanged with your glorious, marvelous light, Lord Jesus. We thank you for your magnanimous love, incomparable love. You loved us while we were yet sinners. Peradventure, anyone may dare to die for a good person, but God demonstrates his love towards us while we were yet sinners. Christ died for us. Thank you for your love. Hallelujah. We were not even people. Lord, we were not in the darkness, but we were darkness in ourselves. We were separated from you, aliens to the commonwealth of Israel. Hallelujah. We were under your wrath. We were indeed the children of wrath, had never obtained mercy, but God, who is rich in mercy, he has demolished the middle wall of partition in the precious body of Jesus of Nazareth. He reconciled us, we who were enemies to God, through the atoning blood of Jesus. Hallelujah. प्रभु मैं सोमा रानी को तेरे लहू में छिपाता हूँ. Bless Soma Rani. Bless her household. Stretch forth your mighty nail-scarred hand over her life, Lord, I pray. And I pray, Father, for Dorothy Thapa. I cover Dorothy Thapa under your blood and speak the blessing of the covenant over Dorothy Thapa. And Father, I cover Pastor Satpal Singh and his household under your blood. His sons and his family, I cover them all under your blood. Lord, I bring before you Malkiyat Gill, his family, his children, his household, Lord. Hallelujah. Lord, may they stay under the blessing of the covenant. I bring Parminder Singh before you, his life before you. Cover him under your blood. I bless Amarjit Kaur from Jalandhar and her household and her family and her grandchildren, Father. I speak blessing of Yah over them in the name of Yahushua HaMashiach. I cover John Thomas under your blood. Speak your anointing, your favor and your blessing, Father. Father, over Sister Agnes Lal from Delhi and her family and her household, cover them under your blood. Lord God, hallelujah. We praise you, we glorify you, we magnify. Lord, we pray for the dear lady Taljinder Kaur
for her kidneys, for her whole body to be healed in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Once again, Father, we pray for Mr. Kakkad from Delhi. Lord, for the miracle of healing to take place in his body. Hallelujah. Yahushua HaMashiach, may healing flow from your mighty wings. Hallelujah. For you are the Son of Righteousness. There is healing in your wings. I cover Rajni Devi under your blood. Your blessing be upon Rajni Devi in the mighty name of Jesus. I pray for Gurdeep Singh also and his brother and his household. Father, cover them all under the blood of the Lamb. तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस्सु ने जान दे के दुनिया बचा लईए, इंसान दी मुसीबत अपने ते पा लईए। यस्सु ने जान दे के दुनिया बचा लईए, यस्सु ने जान दे के दुनिया बचा लईए। Lord, I also pray for Vinodini Christian that you will heal her spine. Straighten her back, Lord, by the power of your Holy Spirit. यस्सु दे कोल आ जा, पापां दया मरी जा। यस्सु दे कोल आ जा, पापां दया मरी जा। जिंदगी बच गई ओ जिस जिस दुआ लईए। यस्सु ने जान दे के दुनिया बचा लईए, यस्सु ने जान दे के दुनिया बचा लईए, दुनिया बचा लईए। हालेलुया। भाई और बहनों, अपने आप को, अपने घरानों को यीशु मसीह के लहू के साए के नीचे छिपाइए। प्लीड द ब्लड, plead the blood, unleash the word out of your mouth and release the blood over your life, over your loved ones, over your families. Dark times, indeed perilous times have begun upon the earth. This solar eclipse was a terrible omen. It is an harbinger of a great tragedy that is about to come upon the earth. Wars and rumors of wars, and indeed there shall be wars, famines and pestilences, and so many epidemics and new kind of diseases will be breaking out, and you will see seismic activities increasing, escalating. The tectonic plates of the earth underneath, even under the ocean, are colliding with each other. The south and the north pole of the earth are flipping. There is upheaval in the celestial realm, the planetary system, the stars. There is solar flares happening over the sun. There are so many terrible things happening. यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जच्चा की पीड़ाओं का प्रारंभ होने वाला है भाई और बहनों। तो यीशु मसीह के चरणों से लिपट जाइए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के चरणों से लिपट जाइए। हालेलुया। Lord, I pray for Sister Angelina and I pray for her brother in Delhi. Bless her, bless the ministry that she does, Lord, among very, very less fortunate people in Mumbai. Bless her, Lord. I speak your blood, your anointing over her in the mighty name of Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of the Most High God. तेरा धन्यवाद हो। Lord, I pray that
we will learn from you, Lord, that we will come to drink from the fountain, the living water. Lord, that we will draw nigh to the banqueting table, that we may eat, Lord, the bread of life, hallelujah. That we may drink the wine, Lord, the new wine, hallelujah, that will energize us, hallelujah. And Father, in the name of Jesus, we pray that you will pour out your fresh anointing oil in the mighty name of Jesus. Lord, open our heart. Let our heart be hungry, Lord, hungry and yearning and thirsty, Lord, to receive the engrafted word of the Most High God. हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन पे मनन करेंगे, और मैं चाहता हूँ आप अपनी बाइबल खोलें और भजन संहिता नंबर 1 निकालिए, साम 1। हालेलुया। ब्रदर ललित, हमने इसके ऊपर 16 घंटे की स्टडी की है, साम 1 के ऊपर। तो भजन संहिता 1, हालेलुया। ज़बूरों में, भजनों में सबसे शिरोमणि भजन है भजन नंबर 1, इसलिए होली स्पिरिट ने इसे नंबर 1 पे रखा है। तो ये जो भजन है, ये भजन एक ब्लूप्रिंट है एक धर्मी मनुष्य के जीवन का। एक धर्मी मनुष्य को अपनी लाइफ कैसे नेविगेट करनी है, कैसे प्रभु के मार्गों पे चलना है। एक ज़दिक को, धर्मी को, और एक यशार को, जो सीधी लाइन में चलता है, उसे कैसे प्रभु के संग चलना है, इस भजन के अंदर लिखा है। और इस भजन के अंदर परमेश्वर के संग सीधी चाल चलने वाले लोग, परमेश्वर यीशु मसीह के चरणों में जीवन बिताने वाले लोग, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचनों को अपने हृदय में रखने वाले लोगों को कौन कौन से वरदान, कौन कौन सी बरकतें परमेश्वर देता है, वो भी इस भजन के अंदर लिखी गई हैं। और इस भजन के अंदर दोनों मार्ग बताए गए हैं, धर्मी का पथ भी बताया गया और दुष्ट का पथ भी बताया गया। हालेलुया। तो आइए हम पढ़ें साम 1। ब्लेसेड इज द मैन दैट वॉकेथ नॉट इन द काउंसल ऑफ द अनगॉडली, नॉर स्टैंडेथ इन द वे ऑफ सिनर्स, नॉर सिटेथ इन द सीट ऑफ द स्कॉर्नफुल। हालेलुया। आपको मालूम, प्रभु यीशु मसीह ने जो सबसे पहला अपना संदेश दिया पहाड़ के ऊपर जाके, यीशु मसीह उस पहाड़ी उपदेश में सबसे पहले जब अपना मुंह खोलता है तो कौन सा शब्द प्रभु जी बोलते हैं? ब्लेसेड, ब्लेसेड आर द पुअर इन हार्ट। हालेलुया। ब्लेसेड के लिए वर्ड है आशेर। हालेलुया। और आपको मालूम, ये परमेश्वर के नाम का हिस्सा है। जब मूसा परमेश्वर से पूछता है कि प्रभु आपका नाम क्या है, उस अद्भुत दृश्य को देखता है कि एक झाड़ी को आग लगी है। तो बहुत सारे यहूदी रब्बी लोग कहते हैं कि आग की झाड़ी में से आग के जलते हुए लेटर्स हिब्रू भाषा में निकल के बाहर आए, और परमेश्वर ने कहा, उसने पूछा प्रभु आपका नाम क्या है? तो परमेश्वर ने कहा हाइया आशेर हाइया, हाइया आशेर हाइया। बोले मेरे साथ, हाइया आशेर हाइया, हाइया आशेर हाइया, हाइया आशेर हाइया, मैं जो हूँ सो हूँ, द ग्रेटेस्ट आई एम। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो यहाँ पे सबसे पहला शब्द है ब्लेसेड, आशेर। ब्लेसेड का मतलब है धन्य व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसे देख के दूसरों को जलन हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने चारों ओर से घेर रखा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में सुकून है, इत्मीनान है, शालोम है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने अपने मोक्ष से, सोजो ग्रीक वर्ड है, मोक्ष के आनंद से भरा हुआ है। हालेलुया। वचन में लिखा है ब्लेसेड इज द मैन, धन्य है वो व्यक्ति जो क्या नहीं करता है। यहाँ पे नहीं करता है लिखा है पहले,
यहाँ पे पहली आयत में ये नहीं लिखा कि वो क्या करता है, पहली आयत में लिखा है धन्य वो व्यक्ति है जो नहीं करता है। क्या नहीं करता है? पढ़िए पहले वचन को हिंदी में प्लीज़, कोई बीच में प्रिंट कर दीजिए। साम 1 को हिंदी में भी प्रिंट कीजिए प्लीज़, मैं केवल इंग्लिश बाइबल से पढ़ रहा हूँ। ब्लेसेड इज़ द मैन दैट डज नॉट वॉक इन द काउंसिल ऑफ द अनगॉडली। हालेलुया। सबसे पहली बात लिखी है, धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों की काउंसिल में नहीं चलता है। हालेलुया। दुष्ट लोगों की काउंसिल में, सलाह में, दुष्ट लोगों की फेलोशिप में, दुष्ट लोगों की एडवाइस में ये व्यक्ति कभी नहीं चलता। हालेलुया। और फिर क्या लिखा है दूसरी बात, नॉर स्टैंडेथ इन द वे ऑफ द सिनर, और दुष्ट लोगों के मार्ग में कभी खड़ा नहीं होता। हालेलुया। यहाँ पे अलग अलग हिब्रू वर्ड हैं जिसके ऊपर मैं आपको दूसरे सेशन में और गहराई में लेके चलूँगा कि ये इब्रानी भाषा में ये अलग अलग शब्द के क्या मायने हैं। तो प्रभु कहता है जो वॉकेथ नॉट, डज नॉट वॉक इन द काउंसिल ऑफ द अनगॉडली, नॉर स्टैंडेथ इन द वे ऑफ सिनर्स, दुष्टों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। पहले लिखा है चलता नहीं, फिर लिखा है खड़ा नहीं होता, फिर लिखा है नॉर सिटेथ इन द सीट ऑफ द स्कॉर्नफुल, और जो ठट्ठा करने वाले हैं उनके साथ कुर्सी डाल के बैठता नहीं है। हालेलुया। यहाँ पे बहुत अद्भुत एक सिद्धांत पवित्र आत्मा ने लिखा है। सबसे पहली बात है खड़े होना। जैसे मार्ग में कुछ लोग खड़े हैं जो अश्लील बातें करते हैं और जो जुआ खेलते हैं और जो स्त्रियों को कुदृष्टि से देखते हैं और जो मुंह से गंदी बातें बोलते हैं, कुफर बकते हैं, ये व्यक्ति पहले तो उनके संग खड़ा नहीं होगा। हालेलुया। फिर दूसरी बात है, अगर खड़ा होगा उनके साथ तो फिर वो बोलेंगे भाई तुम भी ज़रा 3 पत्ती खेल के देखो। फिर दूसरा स्टेप ये होगा, अगर उनके बीच में ये खड़ा होगा तो दूसरा काम क्या करेगा, ये उनके संग बैठ जाएगा। अब जब उनके संग बैठ जाएगा तो उनकी फेलोशिप का, उनकी संगति का हिस्सा हो जाएगा। फिर प्रतिदिन आके खड़ा होगा और बैठेगा, प्रतिदिन उनकी अश्लील गंदी बातें सुनेगा, प्रतिदिन वो गंदे टॉन्ट करेंगे, स्त्रियों को कुदृष्टि से देखेंगे, जुआ खेलेंगे, दुष्टता के काम करेंगे, नशे करेंगे, दारू पिएंगे, स्मोक करेंगे, वो सब काम धीरे धीरे ये करने लगेगा। फिर इवेंचुअली क्या होगा, फिर उनके संग चलना शुरू कर देगा। वॉचमन नी नाम का एक व्यक्ति था, चाइनीज़, बहुत अजीम खुदा का बंदा था। उन्होंने एक बुक लिखी थी बहुत साल पहले, सिट स्टैंड एंड वॉक। सिट स्टैंड एंड वॉक, 3 बातों के ऊपर लिखी। तो ये एक धर्मी व्यक्ति है, यशार है, ये 3 काम पहले नहीं करता है, नेगेटिव में है। पहले 3 काम क्या नहीं करता, मैं बाद में आपको हिब्रू टेक्स्ट में लेके जाऊंगा और कितनी अद्भुत शिक्षा है इब्रानी भाषा में, वो हम देखेंगे। ये पहले 3 काम नहीं करता है। ये बैठता नहीं है सीट ऑफ द स्कॉफर, ठट्ठा करने वालों की कुर्सी में बैठता नहीं, और पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, और दुष्टों की सम्मति पे चलता नहीं है। कौन है ये व्यक्ति? परमेश्वर इस व्यक्ति को धन्य कहता है। हालेलुया, हालेलुया। संसार ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहता है। अरे ये कोई मज़ा नहीं लेता है, ज़िंदगी का नज़ारा लेना चाहिए, जीवन में एक बार आए हो, ज़िंदगी का आनंद लेना। इस तरह की लॉजिक, इस तरह का ज्ञान, इस तरह की बुद्धि बांटते हैं संसार के लोग। लेकिन ये क्या करता है? पहली 3 वचन, तीनों काम है नेगेटिव में। ही डजंट, ही डजंट, ही डजंट। बट वर्स नंबर 2, बट हिज डिलाइट इज़ इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड। दिस मैन हैज़ नो डिज़ायर to sit in the seat of the scoffer. He has no allurement to walk in the ways of the sinner, and he has no attraction to the counsel of the ungodly. Hallelujah. पर इसकी ये किस चीज़ के पीछे है? डिलाइट। हालेलुया। इसके दिल की खुशी क्या? डिलाइट के लिए बहुत प्रोफाउंड हिब्रू वर्ड है।
मैं आपको दूसरे सेशन में बताऊंगा। ये इंसान के दिल की खुशी क्या है, डिलाइट क्या है। हालेलुया। ये पहली आयत की तीनों चीज़ों के पीछे नहीं है, संसार के भोग विलास के पीछे नहीं है, संसार के दुष्ट कर्मों के पीछे नहीं है, संसार के बुरे लोगों की संगति के पीछे नहीं है, लेकिन ये किसके पीछे है? वचन में लिखा है बट हिज डिलाइट, ओरिजिनल ट्रांसलेशन कहती है बट हिज कांस्टेंट डिलाइट, उसकी खुशी, उसका इत्मीनान, उसकी खोज, उसकी तलब क्या है? परमेश्वर का कलाम है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है बट हिज डिलाइट इज इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड, वो परमेश्वर के कलाम में मगन रहता है, डिलाइट करता है। हम मैं बाद में दूसरे सेशन में हिब्रू वर्ड देख के स्टडी करेंगे। डिलाइट करता है, अपने हृदय से परमेश्वर के कलाम की कामना करता है, परमेश्वर के कलाम के पीछे भागता है, परमेश्वर के कलाम को खोजता है। उसे संसार और संसार की चीज़ें भाती नहीं हैं, उसे संसार के आनंद देने वाली भोग विलास की चीज़ें भाती नहीं हैं, उसे परमेश्वर की हजूरी भाती है और उसे परमेश्वर के कलाम से आनंद मिलता है और वो अपना पूरा यत्न परमेश्वर के कलाम को हासिल करने में ही लगाता है। आज से 30 वर्ष पहले जब मैं प्रभु में आया, मैंने मसीहों को देखा, वो अलग तरह के लोग थे। आज के मसीह लोग अलग तरह के लोग हैं। लोग धनी नहीं थे ज़्यादा, जहाँ जहाँ हम जाके संगत करते थे बहुत गरीब लोग थे। हज़ारों लाखों की तादाद में नए लोग प्रभु में जुड़े। निर्धन गरीब लोग क्या करते थे? शाम को बैठते थे, घुटने टेक के ऐसे बोरियां डाल लेते थे, टाट डाल लेते थे, उनके ऊपर बैठते थे, ढोलक लेते थे और भजन गाते थे यहोवा के लिए। हालेलुया। कोई खंजरी लेके, कोई घंटी लेके बैठ के रोज़ प्रार्थना। हालेलुया। दिल में ललक होती थी संध्या को यहोवा की उपासना करें। छोटी छोटी मंडलियाँ घरों के अंदर बैठ के यहोवा के लिए भजन गाते थे, घंटों घंटे भजन गाते थे, स्तुति करते थे, अन्य अन्य भाषा में आत्मा में भर के यहोवा की आराधना करते थे, उपासना करते थे और रोज़ परमेश्वर के कलाम की तलब होती थी। मैं भोर को 3 बजे से पहले उठ जाता था। मुझे प्रतिदिन, मैं हज़ारों गवाहियाँ बता सकता हूँ, मुझे एंजल्स ने आके उठाया। मैं ड्रीम में भी एंजल देख रहा हूँ और जब मैं उठ के बैठा अपनी आंखें मल रहा हूँ तो भी एंजल खड़ा है वहाँ पे। और कई बार तो प्रभु को मैंने देखा, प्रभु आए, प्रभु की उपस्थिति देखी मैंने, प्रभु के वस्त्र, जलाली वस्त्र के छोर देखे मैंने। प्रभु ने आके मुझे उठाया बड़ी भोर और कहा, अरे विनोद, वो गीत तो सुनाओ मुझे। हालेलुया। प्रभु के लिए भजन गाना, ज़बूर गाना, आत्मिक गीत गाना। हालेलुया। और घंटों घंटे गीत गाते प्रभु की आराधना करना, घंटों घंटे, 3 बजे से लेके 6, साढ़े 6 बजे तक भजन गाते प्रभु की आराधना। कई बार पूरी रात आराधना में गुजर जाती थी। मेरे जॉज जो थे दुखने लगते थे, मैं बोल बोल के प्रार्थना करता था, जबड़ा दुखने लगता था, लेकिन 1 घंटा सो लेते थे, प्रभु फिर तरोताज़ा कर देता था। साइकिल लेके गांव-गांव, शहर शहर जाते थे। साइकिल के पीछे बैग रखा होता था, नया नियम और ट्रैक्ट और किताबें भरी होती थी। सड़कों पे, चौकों पे खड़े होके प्रभु का भजन करने लगते थे। छोटा सा मेगाफोन था, साइकिल पे लगा के खड़ा हो के मैं प्रचार करता था। नया प्रभु में आया था, किसी बाइबल कॉलेज नहीं गया था, किसी पासवान जी से ज्ञान नहीं हासिल किया था, कोई ऑर्डिनेशन नहीं थी पास। इस तरह जीवन था लोगों का। हालेलुया। मैंने अपनी आँखों से लोगों को बदलते देखा, पासवानों को देखा, वो प्रभु को छोड़ के संसार की चीज़ों के पीछे चले गए। शैतान ने उन्हें घेरा, धन दौलत के पीछे, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के कल्ट ने उन्हें पकड़ लिया और शैतान खींच के ले गया। वो सादगी, हालेलुया, वो सिंप्लिसिटी चली गई। अब तो मिनिस्ट्री के नाम पे पूरा कमर्शियल एम्पायर है, एंटरप्राइज खड़ी की है मिनिस्ट्री के नाम पे, पूरी एक इंडस्ट्री है, पूरा एक पैराफर्नेलिया है, ऑफिशियल पूरा टच और पूरा मीडिया टीम और पूरा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और पूरा ऑफिस और फलाना और ढिमका और डायरेक्ट किसी से बात नहीं करना, पूरा एक सिस्टम
क्रिएट किया है, वेस्ट की, पश्चिम देशों की नकल करके ये काम किया गया। अंदर कुछ नहीं है, खाली है जीवन। पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की हजूरी, पवित्र आत्मा का मसा, यीशु मसीह की उपस्थिति नहीं है, लेकिन बाहरी आडंबर बहुत है। हम साइकिलों पे निकलते थे भाई और बहनों, गर्मियों के अंदर पसीनों पसीन हो जाते थे, रास्ते में दरिया नदी आते थे, वहाँ नहाते थे, दिन भर काम प्रभु का करते थे, रात को किसी गांव में जाके वहाँ मीटिंग करते थे और वहीं सो जाते थे। प्रभु तरोताज़ा कर देता था, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं। हालेलुया। अद्भुत रीति से प्रभु संग संग चलता है अगर सच्चे हृदय से प्रभु के पीछे चलें। हालेलुया। ये भजन के अंदर साम 1 में एक ऐसा व्यक्ति है जो धन्य है, जो सच्चाई से, सादगी से, खराई से प्रभु के पीछे चल रहा है। ये व्यक्ति वो है जिसके आगे आगे एक रोशनी चलती है, इसके हृदय में भी एक मशाल जलती है और इसके आगे आगे परमेश्वर की रोशनी चलती है, और वो परमेश्वर की रोशनी इसे सकरे मार्ग से लेके जा रही है, तंग मार्ग से। हालेलुया। ये भजन में बहुत गहरी बातें हैं। कम से कम हमें 5-6 घंटे की स्टडी करनी पड़ेगी। 6 इसके अंदर वर्सेस हैं, कम से कम 6 घंटे मैंने और ललित भाई ने इसके ऊपर मेरा ख्याल है 12-14 सेशन किए हैं, घंटे घंटे के, साम 1 के ऊपर। हालेलुया। तो ये जो व्यक्ति है, इसका डिलाइट है यहोवा का कलाम, बट हिज डिलाइट इज इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड, एंड इन हिज लॉ डोथ ही मेडिटेट डे एंड नाइट। दिन और रात कलाम में रहता है। जब सोया होता है तो भी कलाम में सोता है, उठता है तो कलाम में जगता है। यहोवा के कलाम में बना रहता है निरंतर। उसकी सोचें, उसके ख्याल यहोवा के कलाम में रहते हैं। उसे संसारिक ख्याल नहीं आते, संसारिक विचार नहीं आते। किसी मूवी देखने का रात को, आधी रात को कुछ ऐसी इस तरह की तस्वीरें देखने की ख्वाहिश पैदा नहीं होती, कुछ इस तरह की चीज़ें देखने की दिल में तमन्ना नहीं जगती, क्योंकि 24/7 परमेश्वर के कलाम के अंदर डूबा रहता है ये व्यक्ति। हालेलुया। वचन में लिखा है, बट हिज कॉन्स्टेंट डिलाइट इज इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड। और फिर क्या लिखा है, एंड इन हिज लॉ, परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर की व्यवस्था में ये व्यक्ति क्या करता है, दिन और रात मनन करता है। क्या करता है, मनन करता है। मैं भाई और बहनों सुबह उठता था, कई बार मैं सुबह उठ के, कई बार 2 बजे उठ जाता था, और ब्लैक बोर्ड एक रखा हुआ था मैंने, उसके ऊपर मैं 10 आयतें लिखता था। उन 10 आयतों को याद करता था, फिर मिटे देता था, फिर लिखता था उन्हीं को, फिर याद करता था। ऐसे करते करते मैंने नया नियम रट लिया था, और मैं बोलता ही रहता था परमेश्वर का कलाम, बोलता ही रहता था परमेश्वर का कलाम। परमेश्वर के कलाम को ऐसे स्टोर करता था जिस तरह कोई धन का लोभी व्यक्ति सुबह से लेकर रात तक धन जोड़ता है, धन ही धन इकट्ठा करता है। कोई ऐसा लाला बनिया है, धन के पीछे है, धन का लोभी है, वो रात को घर आके सोता है, रात को सपने में भी नोट गिनता है, सिक्कों की खनक सुनाई देती है उसे, क्योंकि वो धन से लोभ, धन का लोभी है, लोलुपता है उसके अंदर धन की। इस तरह परमेश्वर की हजूरी की लोलुपता, परमेश्वर के कलाम की कामना, परमेश्वर के मार्गों की खोज। हालेलुया। प्रतिदिन परमेश्वर से कहना, प्रभु मुझे अपनी हजूरी का एक नई डिमेंशन में लेके चल, प्रभु तेरे संग मेरे अनुभव को और गहरा कर, प्रभु तेरे कलाम की और गहराइयाँ खोल, फरिश्तों की दुनिया की और डिमेंशन मुझे सिखा, स्पिरिट वर्ल्ड की और डिमेंशन मुझे बता, प्रभु मुझे अपने राह मार्ग दिखा। आपको मालूम भजन में क्या लिखा है, भजन में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने अपने काम तो इसराइलियों पे प्रकट किए, पर अपना राह मूसा पे प्रकट किया। 103 भजन निकालिए, 103 भजन, साम 103 निकालिए, 103 ज़बूर, और एक वचन आपको देता हूँ,
साम 103 और उसका 7 वचन पढ़ें। 103 ज़बूर का 7 वचन हिंदी में प्लीज़ प्रिंट भी करें। सुने क्या लिखा है। ही मेड नोन हिज वेज अनटू मोजेस एंड हिज एक्ट्स अनटू द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपने चिन्ह और चमत्कार, अपने बड़े बड़े काम तो इस्राएलियों को दिखाए, पर परमेश्वर ने अपने राह केवल मूसा को दिखाए। समझ रहे फ़र्क आप? मूसा परमेश्वर का दास परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार देखने के लिए परमेश्वर के पीछे नहीं था, वो परमेश्वर के चेहरे को देखने के लिए उसके पीछे था। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर से कहता था मुझे अपने राह दिखा, मुझे अपनी विधियां सिखा, मुझे अपने चेहरे का नूर दिखा। इजरायली केवल चिन्ह चमत्कार देखते थे और उसी में खुश थे। लेकिन मूसा प्रभु को क्या कहता है? मूसा कहता है परमेश्वर मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूँ। हालेलुया, मुझे अपना चेहरा दिखा। वो परमेश्वर के चेहरे को देखने की कामना करता था। तो परमेश्वर ने कहा कि तू मेरा चेहरा देख के जीवित नहीं रह सकता। तो परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? परमेश्वर ने कहा इस चट्टान की दरार में छिप जा। हालेलुया। भाई और बहनों, आपको मालूम वो चट्टान कौन है जिस चट्टान में छिप के परमेश्वर दिखाई देता है और जिस चट्टान के अंदर शायद दरार आ गई है क्योंकि उसे मारा गया है? वो चट्टान स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह स्वर्गीय पिता का संपूर्ण प्रतिबिंब है और उसके स्वरूप का एक्सप्रेस इमेज है। हालेलुया। इसलिए वो कहता जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। वचन में देखिए ध्यान से क्या लिखा। प्रभु यहोवा कहता है मैं यहाँ से गुजरूंगा मूसा, तू सिर्फ मेरी बैक देख सकता है, मेरा चेहरा देख के जीवित नहीं रह सकता। तो वचन में लिखा है परमेश्वर ने मूसा को उस चट्टान में छिपा दिया और वचन में लिखा है यहोवा ने अपना हाथ उसके ऊपर रख दिया ऐसे, और फिर यहोवा वहाँ से गुजरा। अब ध्यान से देखें कितनी अद्भुत बात है। चट्टान में उसे प्लांट कर दिया और यहोवा ने अपना हाथ रख दिया और यहोवा वहाँ से गुजरा। दो यहोवा हैं यहाँ पे, एक यहोवा यीशु मसीह अनंत पुत्र अनंत पिता का, दूसरा यहोवा स्वर्गीय पिता। हालेलुया। वो अपने हाथ से उसे ढांकता है। हालेलुया। और प्रभु वहाँ से गुजरता है, यहोवा परमेश्वर। और आपको मालूम जब यहोवा वहाँ से गुजरता है तो क्या होता है? एक प्रोक्लेमेशन होती है, एक घोषणा होती है। घोषणा क्या होती है? यहोवा करुणामयी है, यहोवा दयालु है, यहोवा अति पवित्र है, यहोवा विलंब से कोप करता है, यहोवा अपनी करुणा को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखता है, वो क्षमा निधि है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर के गुणों की घोषणा हुई। आपको मालूम यहोवा की उपस्थिति कहाँ रहती है? जहाँ पे यहोवा परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स की घोषणा की जाती है, जहाँ पे यहोवा कौन है ये बताया जाता है लोगों को, जहाँ पे पादरी लोग अपनी मार्केटिंग नहीं करते, जहाँ पे अपने आप को नहीं उघाड़ते, अपनी समझने हाइप क्रिएट नहीं करते लोगों के अंदर, जहाँ पे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करके नहीं खींचते, जहाँ पे ये घोषणा की जाती है कि यहोवा धर्मी है, यहोवा पवित्र है, यहोवा सच्चा है, यहोवा न्यायी है, यहोवा विलंब से क्रोध करता है, यहोवा अति करुणामयी है, जहाँ पे सिर्फ यहोवा यहोवा प्रभु यीशु मसीह, यहोवा प्रभु यीशु मसीह, यहोवा प्रभु यीशु मसीह, वो कौन है, वो क्या करता है, सिर्फ यही चर्चा होता है। हालेलुया। मनुष्य कौन है, कितनी डिग्रीज की हैं उसने, कितनी थियोलॉजिकल लॉरेल्स उसके नाम के आगे लगे हैं, कितनी बड़ी चर्च है, कितने बपतिस्मे किए हैं, ये दिस डज नॉट मैटर। हालेलुया। ये बाबुल की नगरी का काम है जो किया गया पृथ्वी के ऊपर, जहाँ केवल यहोवा के नाम की प्रोक्लेमेशन होती है 24/7। हालेलुया, हालेलुया। वही सच्चा झुंड है, वही सच्ची मंडली है, जहाँ पे केवल यहोवा
यहोवा यहोवा प्रभु यीशु मसीह, यहोवा प्रभु यीशु मसीह। एक ही एजेंडा होता है जहाँ पे मिनिस्ट्री को बनाने का, मिनिस्ट्री को उठाने का, अपने प्रोग्राम को बनाने का, अपने एजेंडा पेश करने का, अपने प्रोडक्ट्स बेचने का, अपनी मिनिस्ट्री को एनहांस करने का, अपने आप को समझ रहे प्रमोट करने का, मार्केटिंग करने का कोई एजेंडा नहीं होता। केवल यहोवा 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 का नाम ऊंचा होता है, वहाँ पे यहोवा रहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपको मालूम मूसा की बहुत दिल की गहराई की तमन्ना थी कि मैं तुझे देखना चाहता हूँ प्रभु। लेकिन हुआ क्या, मूसा ने जब इज़राइलियों को कनान में लेके जाने वाला था तो इज़राइलियों ने पानी मांगा, और मूसा ने क्या किया, मूसा ने प्रभु यहोवा के नाम को आदर नहीं दिया। मूसा और मूसा का भाई हारून उस चट्टान के पास खड़े हुए और घमंड से उन्होंने बोला, क्या हम तुम्हारे लिए परमेश्वर हैं जो पानी निकालें? और मूसा ने चट्टान को मार दिया, जबकि यहोवा ने कहा था चट्टान से सिर्फ बोलना है, चट्टान पानी देगी। मूसा जी ने तैश में आके, मूसा जी ने प्रभु की ओर लोगों को इशारा नहीं किया, अपनी ओर कर लिया, क्या हम परमेश्वर हैं जो तुम्हारे लिए पानी निकालें? फोकस जो था यहोवा से हटा के अपनी ओर कर लिया। तो प्रभु जी नाराज हो गए। प्रभु ने मूसा से कहा, अब तू कनान में नहीं जाएगा। देखिए, एक व्यक्ति 120 वर्ष का हो गया है, उसने 40 साल जानवरों को चराने में गुजार दिए, 40 साल प्रभु ने उसको रगड़ा, बुरी तरह तैयार किया, 40 वर्ष उसने इस प्रजा के संग गुजार दिए, और अंत में प्रभु ने कहा तू नहीं जा सकता इस देश में भाई। लेकिन उस बंदे की, उस खुदा के दास की कामना क्या थी? प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ। उसने लाल समुंदर फटता देखा, वो हाथ ऊपर करता था अमालेकी हार जाते थे, हाथ नीचे करता था इजरायली हार जाते थे। ऐसी कुदरत दी खुदा ने उसके हाथों में। उसके हाथ में लाठी से मौजे होते थे, चट्टान पानी देती थी, आसमान से मन्ना बरसता था, उसकी दुआ से मीट उतर आता था स्वर्ग से। अद्भुत काम होते थे इस खुदा के जलाली दास के द्वारा। लेकिन यहोवा ने उसको भी कनान में जाने नहीं दिया, वादे की धरती में, क्योंकि हल्का सा उसने प्रभु का जलाल खा लिया, परमेश्वर के जलाल को अपनी ओर खींच लिया। सोचिए भाई और बहनों, इतने अद्भुत अजीम प्रभु के दास ने परमेश्वर को थोड़ा सा जलाल नहीं दिया तो प्रभु को अच्छा नहीं लगा। यदि हम लोग अपने आप को सेल्फ प्रमोट करेंगे, सेल्फ मार्केटिंग करेंगे, यीशु मसीह को प्रोडक्ट बना के बेचेंगे, अभिषेक का दाम लगाएंगे, शीशियों में डाल डाल के उसे बेचेंगे, हर एक पवित्र रूहानी चीज़ का हम व्यापारीकरण कर देंगे और लोगों को अपने कैरिस्माटा की ओर, कि हम कितने अभिषिक्त हैं और कितने वरदान हमारी ऊपर हैं, उन वरदानों के कारण आप हमारे पास आओ, अगर ये आधार बना के सेवकाई खड़ा करेंगे तो सोचिए कितना बड़ा दंड मिलेगा ऐसे झूठे प्रेरितों को और ऐसे झूठे नबियों को। सचमुच वो प्रभु से ये सुनेंगे, दूर हो जाओ दुष्टो, मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन प्रभु का बंदा सच्चा था, उससे गलती हुई एक बार, बट ही वॉज वेरी ट्रू इन हार्ट। प्रभु का खोजी था, प्रभु के मार्गों को ढूंढता था, प्रभु के चेहरे की तलाश करता था। चिन्ह चमत्कार इज़राइल देखता था, लेकिन वो प्रभु के चेहरे का खोजी था। उसने प्रभु से कहा मुझे अपना चेहरा दिखा। प्रभु ने उसकी प्रार्थना स्मरण रखी। आपको मालूम, प्रभु यीशु मसीह ने एक दिन अपने चेलों से कहा, तुम में से बहुतेरे हैं जो मौत का मुंह नहीं देखेंगे जब तक मेरे राज्य को आते ना देखें। तो ये भ्रांति फैल गई कि शायद कुछ लोग मरेंगे नहीं। वचन में लिखा है 6 दिन बाद यीशु मसीह उनमें से अपने 3 चेलों को, पतरस, याकूब, यूहन्ना को तबोर पहाड़ पे ले गया, हरमन पहाड़ पे। और जब यीशु मसीह उस पहाड़ पे पहुंचा, यीशु मसीह जलाली हो गया। यीशु मसीह अपने असली स्वरूप में आ गया। यीशु मसीह जो है वो बन गया। उसने जो मनुष्यत्व पहना था, ये हांड मांस का जो शरीर धारण किया था, वो देह जलाली देह में बदल गई। वो विराट सृष्टि का रचिता बन गया और उसका चेहरा करोड़ों सूर्यों के तेज जैसा चमकने लगा। अंदर से वो ट्रांसफॉर्म हो गया।
अंदर से नूर की किरणें फूटने लगीं। जलाली यीशु मसीह अपने जलाल में आ गया। उसने कहा था तुम में से कुछ मरेंगे नहीं जब तक मेरे राज्य को ना देखें। आपको मालूम परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य है यीशु मसीह का ट्रांसफॉर्म, यीशु मसीह का अपने जलाली स्वरूप में आ जाना। ऐसा यीशु कलीसिया के अंदर होना चाहिए, ऐसा यीशु मंडली के अंदर होना चाहिए, जलाली यीशु। और जब कलीसिया में अन्य जाति के लोग जाएं, उन्हें यीशु मसीह दिखाई दे। इंसान अपने कैरिस्माटा का, अपनी कलाकारी को पेश करता ना दिखाई दे, बल्कि यीशु मसीह की उपस्थिति दिखाई दे। और फिर क्या हुआ? यीशु मसीह के लेफ्ट और राइट एलिया और मूसा आ गए। मूसा ने प्रार्थना की थी, मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूँ। परमेश्वर हमेशा अपने दासों की प्रार्थनाओं को स्मरण करता है। परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना को स्मरण किया। मूसा को उसने जाने नहीं दिया था कनान देश में, लेकिन मूसा फिर कनान में आया। केवल पृथ्वी के कनान में नहीं आया, स्वर्गीय कनान में। और जलाली यीशु का चेहरा देख रहा है, यीशु के संग खड़ा है और यीशु है। हालेलुया। ये जो धर्मी व्यक्ति है ना, भजन संहिता 1 में, हिज कॉन्स्टेंट डिलाइट इज इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड एंड इन हिज लॉ ही मेडिटेट्स डे एंड नाइट। ही डज नॉट सिट, he does not stand, and he does not walk with the ungodly people. With the ungodly, with the wicked, he has nothing to do. He क्या करता है वो व्यक्ति? अपने आप को सेपरेट करता है, अलग करता है। किसके लिए? प्रभु के कलाम के लिए। और प्रभु के कलाम पे क्या करता है? मनन करता है। मनन समझते हैं आप? इसके ऊपर और हम करेंगे मनन। भजन संहिता 1 पे हमें 8-10 घंटे लगेंगे वचन सीखने में। क्या करता है ये व्यक्ति? मनन करता है। आपको मालूम, मनन के लिए जो हिब्रू वर्ड है, बहुत प्रोफाउंड हिब्रू वर्ड है। मेडिटेट इंग्लिश में है मेडिटेट, हिंदी में मनन, लेकिन जो हिब्रू वर्ड है, कल सुबह हम उस पर मनन करेंगे। जो असली हिब्रू वर्ड है वो एक पिक्टोरियल वर्ड है। उसका मतलब क्या है? जैसे एक भैंस को आप बढ़िया चारा देते हो खाने के लिए, तो भैंस, जिसे खुरली बोलते हैं पंजाबी में, उसके अंदर चारा डाला है और भैंस खड़ी होकर खूब खाती है, खाना दबा के खाती है कि उसका पेट फूल जाता है। फिर भैंस से खड़ा नहीं हुआ जाता, वो बैठ जाती है और हल्की सी लेट जाती है। लेटने के बाद भैंस क्या करती है? जो उसने अंदर चारा डाला होता है ना सारा, वो बस्ट हो रहा होता है, उसमें से ग्लूकोज पैदा हो रहा होता है, प्रोटीन, प्लाज्मा, सब कुछ निकलने लगता है। तो वो जुगाली करती है, अपना मुँह ऐसे करती है, दांत हिलाती जाती है, और जो उसने जल्दी जल्दी में अंदर डाला होता है वो वापस रिगर्गिरेट करना बोलते हैं उसको, उसे रिगर्गिरेट करती है और उसे फिर अपने मुंह में चबाती है और झाग से निकालती है। जुगाली करना बोलते हैं उसको। यहाँ पे वही वर्ड है, लिखा है ये व्यक्ति परमेश्वर के कलाम को खा लेता है, अपने अंदर भरता है, फिर दिन भर कलाम की जुगाली करता रहता है। उसके ख्याल बदकारी की ओर नहीं जाते, गंदी तस्वीरें देखने की कामना ख़त्म हो जाती है, औरतों के गंदे चित्र देखने की, गंदी मूवीज़ देखने की, मुंह से गंदी बातें करने की, धन लोभ की, लालच की, संसार की मटेरियल चीज़ों की लालसा, अंदर से कामना ख़त्म होती जाती है, क्योंकि वह यहोवा के कलाम पे दिन और रात जुगाली करता है कलाम की। तो भाइयों और बहनों, कलाम की जुगाली आप पता कब करेंगे? जब कलाम को अंदर डालेंगे। अगर आपने अंदर डाला ही नहीं कलाम, तो जुगाली किस चीज़ की करेंगे? तो इसे अंदर डालिए और इसकी जुगाली कीजिए। कल सुबह फिर हम मनन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। गर्मी बहुत बढ़ रही है और बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, हालेलुया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। गर्मी के मौसम के लिए भी और सर्दी के मौसम के लिए भी, बरसात के मौसम के लिए भी प्रभु का धन्यवाद हो। ये सूर्य ग्रहण बहुत बुरी चीज़ें पृथ्वी पे लेकर आ रहा है। प्रभु यहोवा अपने धर्मियों को, जो उसके लहू में गुंधे रहते हैं, पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, जिनके अंदर उसका कलाम बसता है, जो उसकी रोशनी में चलते हैं, उनको कोई हानि नहीं होने देगा प्रभु। क्योंकि आपको मालूम, ज़बूर में हम क्या गाते हैं? हम ज़बूर गाते हैं, सुनिएगा, गाइए मेरे साथ। दिने सूरज न मैनू
सतावे। दिने सूरज ना मुझे सताए, इसका मतलब क्या है? ये जो इक्लिप्स लगता है इसका बुरा असर आता है लोगों के ऊपर। तो भजन गाने वाला भजन ज़बूर में क्या लिखा है? चांद का भी असर आता है। पुरानी एक फ्रेज़ है, मून स्ट्रक लुनेटिक। चांद ग्रहण के समय कई लोग पागल हो जाते हैं। ये इसलिए होते हैं कि पृथ्वी की ग्रेविटी चेंज होती है। ग्रेविटेशनल पुल जो होती है वो पृथ्वी के नॉर्थ साउथ पोल का मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड है वो घटता बढ़ता है। उसकी वजह से इंसान के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे, उसके हार्ट पे, किडनी पे, लीवर पे, लंग्स पे, इवन कि जो ब्लड फ्लो करता है हमारी बॉडी में, किडनीज में जाता, हार्ट में जाता, ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं जो, इनके ऊपर असर पड़ता है इन चीज़ों का। लेकिन यहोवा परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। दिने सूरज ना तेनू सतावे, राती चन्न भी ना कुछ दुख पुजावे। गाइए मेरे साथ। दिने सूरज ना मैनू सतावे, राती चन्न भी ना कुछ दुख पुजावे। खौफ खावा ना मैं विच उजाड़ा, मदद लई यस्सू नू पुकारा। अखियाँ चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद लाई यस्सू नू पुकारा। हालेलुया। द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अगर परमेश्वर आपके हृदय में डाले कि आपने कुछ बीज बोना है प्रभु की सेवकाई के लिए, तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, फिर मैं आपको विधि बता दूंगा कि आप प्रभु के राज्य में बीज बोने पाएँ और परमेश्वर आपको फलवंत करे और बहुत सी आशीष दे। सबको जय यीशु मसीह की।